तो बच्चों, वेलकम टू स्कूल ऑफ फिजिक्स। आ गए हम एक नए प्रॉब्लम के साथ एंड दिस टाइम द क्वेश्चन इज फ्रॉम INPHO 2022। सो द क्वेश्चन रीड्स आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का नाम डिफ्लेटिंग बलून। लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन। Consider an air-filled spherical balloon comprised of an elastic material of surface tension। सरफेस टेंशन हम लोग ने क्वेश्चन में खुद से सिग्मा रख लिया है इंस्टेड ऑफ दिस नोटेशन। यूजुअली लोग सिग्मा ही रखते हैं, सो वी हैव यूज्ड द कन्वेंशन। So the pressure inside the balloon is atmospheric pressure (PATM) and the density of the air is outside is rho ATM इतना। The balloon starts deflating slowly. Assume the average velocity of the air inside the balloon is negligible and the air leaves the balloon in a streamlined fashion. ये दो बहुत important assumptions है. First of all, the average velocity of air inside the balloon is negligible, and second, the air leaves the balloon in a streamlined fashion. ठीक है, तो ये दोनों बहुत important assumptions है, आगे हम लोग समझेंगे. Consider the surface tension to be constant throughout and the air to be incompressible. So, we have to write an expression for the time t required to deflate the balloon through a small opening of cross-sectional area A from the initial radius r naught to the final radius r. So, we have to calculate the time जिसमें balloon deflate करेगा from the initial radius r naught to the final radius r and through a cross-sectional area A. So do give this beautiful question a try and then come on, let's solve it. So चलिए शुरू करते हैं. So first of all, ये रहा अपना balloon. R naught इसका initial radius, rho P A naught जो कि मैं इसका radius density जो इसका मैं pressure रखा हूँ फिलहाल के लिए, pressure assume किया. Sigma हमारा tension है, rho ATM बाहर का density of air outside. This is the small orifice or the cross sectional area जिससे air बाहर जा रहा है of cross sectional area A. So and we have assumed R is a general radius cause इतना तो हम लोग को समझ में आ ही गया होगा कि कुछ इसमें differentiation and integration का use पड़ेगा ही in order to solve this question. So first of all, by Laplace's equation for excess pressure. Laplace's equation is a very beautiful equation for finding the excess pressure, and if you want a video for it, then we'll definitely come with it. लेकिन फिलहाल के लिए let's not extend the video and directly come up with the solution. So the pressure inside the balloon minus the pressure outside, that is PA minus PATM equals 2 sigma under bracket 1 by r minus 1 by r dash, and r dash is जो इस small क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस है. सो क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस जैसे पिछले पेज पे जाता है, सो देखिए इसका एरिया ही दिया है 10⁻⁻5 के स्केल में. सो इसका रेडियस खुद कितना छोटा होगा, इसलिए हम लोग r डैश को नेग्लेक्ट कर लेते हैं 0 के बराबर. सो दिस शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 सिग्मा बाय r. ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे. लेकिन बर्नौली इक्वेशन के लिए हम लोग को दो चीज़ें जो चाहिए, एक्चुअली बहुत चीज़ें चाहिए रहती थी, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है कि जो fluid है, that is either liquid or the gas, that should come out in a streamlined fashion. The fluid should be incompressible, irrotational and non-viscous. So देखिए, इसीलिए हम लोग को ये assumptions करवाए थे. First of all कि the air leaves the balloon in streamlined fashion, पहला condition tick, and second condition, the average velocity of air inside the balloon is negligible. इसका क्या मतलब है कि जो एयर इससे बाहर आ रहा है, मैं ब्लू डॉट से एयर को बना रहा हूँ, जो एयर इसमें है वो बाहर आएगा. हम लोग थोड़ा और जूम इन करते हैं, समझते हैं सिचुएशन को. यहाँ पे जो सारा एयर है वो बाहर आने का ट्राई करेगा, लेकिन इफ जो एयर का वेलोसिटी इनसाइड, जो अंदर कोलिजन्स हो रहे हैं एयर पार्टिकल के, वो बहुत हाई हैं, तो एयर एक रोटेशनल मैनर में बाहर निकलेगा, जिसके कारण हम लोग बर्नौली इक्वेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे.
आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि बर्नौली इक्वेशन के हम लोग को चाहिए कि यहाँ पे रोटेशनल फ्लूइड ना हो, लेकिन वो हो रहा है. सो फाइनली वी कैन नॉट यूज बर्नौली इक्वेशन इफ वो हम लोग को assumptions नहीं दिए होते. सो लेट अस कम बैक टू द पॉइंट. So finally, using the Bernoulli equation, PA, that is the pressure inside the balloon, plus inside the balloon का velocity भी zero है, air particles का, so here zero is equal to P ATM जो pressure outside है, plus half rho ATM density of the atmosphere times velocity square. velocity क्या है यहाँ पे, जिस velocity से air बाहर आ रहा है. सी हम लोग को assumption किया था कि जो अंदर एयर का वेलोसिटी है दैट इज जीरो, लेकिन कुछ वेलोसिटी के साथ एयर तो बाहर आ ही रहा है. सो दैट इज दिस वेलोसिटी. सो हम लोग के पास एक एक्सप्रेशन हो गया वेलोसिटी के लिए. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड हाँ, मैं कुछ बच्चों का देख रहा था, कुछ बच्चों के सॉल्यूशंस. सो दे अज्यूम्ड कि लैपलेस इक्वेशन में दे यूज्ड 4 sigma instead of 2 sigma. So 4 sigma is used, as we know, in case of soap bubble, where the surface is of 2 layers. जैसा कि प्योर एस सी वर्मा में, प्योर एस सी वर्मा के, आई मीन एस सी वर्मा किताब में लिखा हुआ है. एंड मैक्सिमम बच्चे यहीं से पहली बार जानते हैं, सीखते हैं इस इक्वेशन को. सो जैसा कि इसमें दिखा भी रहा है, सबसे पहला लेयर जो है वो एयर का है. देन ये वाला जो लेयर है, ये वाला लेयर लिक्विड का है, एंड वापस से एटमॉस्फेयर का लेयर, बीच में एयर, यहाँ पे आपका लिक्विड, लिक्विड का जो फोम है, एंड बाहर में एटमॉस्फेयर. सो इसीलिए जो दो इक्वेशंस आई, एंड देन फाइनली वी डिराइव दैट द प्रेशर इनसाइड द बलून इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड बाय एन अमाउंट 4s या 4 सिग्मा बाय आर. ठीक है. सो इसीलिए हम लोग देखिए, बैलून में तो 2 लेयर है नहीं, बैलून में सिर्फ एक लेयर है. अंदर जो है वो है एयर इनसाइड द बलून एंड बाहर द एटमॉस्फेयर. सो दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग 2 सिग्मा द लैपलेस इक्वेशन. सो लेट अस प्रोसीड फर्दर. सो यहाँ तक हम लोग आ गए थे, बर्नौलीज इक्वेशन वी हैड अप्लाइड. नाउ सो वी हैव टू फाइंड आउट कि कितने टाइम में बाहर निकल रहा है, कितना टाइम में डिफ्लेट हो रहा है बलून फ्रॉम एन इनिशियल रेडियस टू द फाइनल रेडियस. इसीलिए हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लगाएंगे कि नेगेटिव रेट ऑफ चेंज. यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगा, क्योंकि वेलोसिटी सॉरी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. तो देखिए यहाँ पे जो कैपिटल वी है दैट डिनोट्स वॉल्यूम ऑफ द बैलून, whereas this small v denotes the speed of deflation. So negative of dv by dt, where v is volume, so negative in change of volume equals a into v from the continuity equation. तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में एक्चुअली यहाँ पे रो भी रहता है, लेकिन हम लोग सीधे सीधे आगे बढ़ रहे हैं. सो फॉर एनी जनरल वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, v हम लोग को पता है ये v वॉल्यूम है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. अब dv बाई dt इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसका चेंज निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक्चुअली हम लोग पहले आगे बढ़ लेते हैं. सो dv बाई dt यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया, एंड फाइनली वी गॉट 4 पाई आर स्क्वायर dr बाई dt. अब देखिए हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना क्यों ज़रूरी पड़ा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग सीधे पुट कर देते कि v का वैल्यू इस बर्नौलीज इक्वेशन से पुट कर देते हैं, फाइनली यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग इनिशियल v से फाइनल v के लिए, तब वो अप्रोप्रिएट नहीं रहता. कारण क्योंकि ये जो वेलोसिटी का जो v कम, वेलोसिटी में भी एक r है, एक जनरल r है, सो दैट इज ऑल्सो चेंजिंग. जो आर चेंज कर रहा है, सो आर के साथ आपका वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है. इसलिए हम लोग को जो चेंज इन रेडियस, जो चेंज इन जनरल रेडियस है, वी हैव टू डिनोट इट, वी हैव टू यूज इट विद द चेंज इन टाइम. सो इसलिए हम लोग चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम रखे, रादर देन चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. सो फाइनली हम लोग आगे प्रोसीड किए, v का वैल्यू यहाँ पे रखे, एंड फाइनली r यहाँ पे ले आए एंड इंटीग्रेट किए. सो बाउंड्री कंडीशंस r नॉट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एंड फाइनल रेडियस स्मॉल सॉरी कैपिटल R एट टाइम टाउ. एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन है, सो इट विल चेंज द लिमिट्स, ऊपर वाले नीचे हो जाएगा, एंड सो ऑन. सो फाइनली वी गेट टाउ इक्वल्स 4 पाई
अंडर ब्रैकेट आर नॉट आर नॉट का पावर 7/2 माइनस आर का पावर 7/2 होल डिवाइडेड बाय 7/a रूट अंडर रो ATM by sigma. So this is the final answer बच्चों. And yes, indeed, it was a very beautiful problem. And I am very glad कि हमारे काफी students ये problem solve कर लिए हैं. It was a easy one, लेकिन still a very beautiful problem as it is. So do like, subscribe and comment for this problem. And हम लोग आते रहेंगे with a higher frequency of videos. So तब तक के लिए bye. Thank you so much.